سوال ہے بتائیے وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کا پھل کھلاتے تھے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ انسان سے کتنی دور ہو جاتا ہے؟ جواب ہے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے نماز میں سستی کرنے والے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کس نبی نے تمام مخلوقات کی دعوت کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے بتائیے قرآن پاک کی کس سورت کو 80,000 فرشتے لے کر اترے تھے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں دجال کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب ہے مٹی کا بنا ہوگا۔ سوال ہے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کون سی چیز ناپسند تھی؟ جواب ہے کچا پیاز۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال ہے بتائیے کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ جواب ہے حرام کام کرتے وقت۔ سوال ہے بتائیے خواب میں سفید کپڑے کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے دولت ملنے کی۔ سوال ہے اسلام میں سب سے زیادہ افضل نفل نماز کون سی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے کون سی عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے جہاد کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے غلاف پر عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص اور 6 قرآنی آیات۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب ہے زیادہ کی لالچ نے۔ سوال ہے بتائیے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے 1 حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے نماز اشراق۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بتائیے فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھنے والا انسان سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب ہے آیت الکرسی پڑھنے والا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب ہے جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنے سے۔ سوال ہے بتائیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ جواب ہے سور پھونکنا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے سے جسم میں کوئی زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے عجوا کھجور کھانے سے جسم میں کوئی زہر اثر نہیں کرتا۔ سوال ہے انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب ہے انسان مریض سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں ثواب کی نیت سے کس پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے؟ جواب ہے اپنے گھر والوں پر۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں صادق اور امین کا لقب ملا؟ جواب ہے 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کا لقب ملا۔ سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جس کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے شیطان کی وجہ سے۔
सवाल है बताइए क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब है बगैर किसी उज़र के जायज़ नहीं। सवाल है क्या औरतें इद्दत के दौरान अपने घर से बाहर जा सकती हैं? जवाब है इद्दत के दौरान औरत को अपने घर में ही रहने की ताकीद की गई है, मगर किसी मजबूरी या ज़रूरत के तहत वह घर से बाहर जा सकती हैं। सवाल है कौन सा तेल नाक में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जवाब है जैतून का तेल। सवाल है क्या आप जानते हैं गज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? जवाब है गज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। सवाल है बताइए किस सूरत की तिलावत करने से इंसान जल्दी अमीर हो जाता है? जवाब है सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करने से। सवाल है मुनाफिकीन को जहन्नुम की कौन सी मंजिल में रखा जाएगा? जवाब है मुनाफिकीन को जहन्नुम की 7वीं मंजिल में रखा जाएगा। सवाल है बताइए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक कहाँ वाक़े है? जवाब है इराक के शहर करबला में। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद करते थे? जवाब है कद्दू। सवाल है मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कौन सी औरत कांटे बिछाती थी? जवाब है अबू लहब की बीवी उम्मे जमील। सवाल है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? जवाब है ज़बूर। सवाल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? जवाब है तौरात। सवाल है बताइए वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा कब्र में भी मिलती है? जवाब है झूठ बोलने की। सवाल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर उठाए गए तो इस वक्त इनकी उम्र क्या थी? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर उठाए गए उस वक्त उनकी उम्र 32 साल 6 माह थी। सवाल है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया है? जवाब है जन्नत के जवानों का सरदार। सवाल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह से कलाम मिला? जवाब है कोहे तूर पर। सवाल है क्या आप जानते हैं दज्जाल कहाँ मौजूद है? जवाब है मदीने से मुशरिक की तरफ। सवाल है क़यामत की निशानियों में से कुछ अहम निशानियां क्या हैं? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का खरूज और दज्जाल का ज़हूर। सवाल है वो कौन सा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में से सुकून छीन लिया जाता है? जवाब है जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ ले उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लिया जाता है। सवाल है बताइए कौन सा जानवर घर में बच्चे दे दे तो रिस्क में तंगी आती है? जवाब है कुत्ता अगर घर में बच्चे दे दे तो रिस्क में तंगी आती है। सवाल है बताइए इस्लाम में एक भी लुक़मा हराम खाने की सज़ा क्या है? जवाब है 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। सवाल है बताइए किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है लंबा क़याम करने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है। सवाल है क्या आप जानते हैं 2 नमाजों को इकट्ठा पढ़ना कब जायज़ है? जवाब है दौराने हज। सवाल है कुरान करीम में कितनी मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है? जवाब है 114 बार, लेकिन सूरह तौबा के आगाज़ में नहीं है। सवाल है बताइए ज़िक्र के बारे में कौन सी कुरानी आयत है? जवाब है ए ईमान वालों अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो। सवाल है बताइए वो कौन सा मुल्क है जिसको नबियों की सरजमीन कहते हैं?
जवाब है फिलिस्तीन को नबियों की सरजमीन कहते हैं। सवाल है औरत अगर चूड़ियां ना पहने तो क्या नुकसान होता है? जवाब है अगर कोई औरत चूड़ी ना पहने तो कोई भी हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये बात जो मशहूर है कि जो ख़वातीन चूड़ी नहीं पहनती उनके हाथ का खाना पीना हराम है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई असल नहीं है। सवाल है क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में किसके इश्क की दास्तान का किस्सा मौजूद है? जवाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का। सवाल है क्या आप जानते हैं कि सबसे जल्दी किस नेकी का सवाब मिलता है? जवाब है रिश्तेदारी निभाना। सवाल है क्या आपको मालूम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल है बताइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ हमेशा अपने साथ रखते थे? जवाब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक हमेशा अपने साथ रखते थे। सवाल है बताइए मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता है और गुनाह माफ फरमा देता है? जवाब है आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तग़फ़ार करना। सवाल है इस्लाम में चोरी करने वाले के साथ क्या करने का हुक्म है? जवाब है हाथ काटने का हुक्म है।